Welcome students of class 12. So as I have written in the group, I am starting on with the chapter that is human health and diseases, the first part of it. And in this chapter, we will be dealing with the types of human diseases, the immunity, and how the physiological barriers and the others of immunity are helping our body to get over the unwanted diseases. And further, we will be lastly dealing on to the drugs and the drug abuse. So, first of all, today we will be letting you know that according to the World Health Organization, what is the definition of a healthy body? What is the definition of health? And what do you mean by disease? Now, health is a state, according to the words which is described by WHO or the World Health Organization. Health is described as a state of complete physical, mental, and social well being. Okay, it does not mean that if there is no disease in your body, that means you are healthy. It does not simply mean that absence of disease means health. It is a get together of physical, mental, and social well being. If you are physically fit, but if you are mentally ill, you are mentally sick, you are thinking always about sometime, you have lot and lots of stress, then also you cannot consider yourself to be healthy. Clear? And now, if I talk about disease, then it is an impaired physiological functioning of the body. Why I am talking about physiological functioning? Because in class 11th also we had heard about the animal physiology, and all the physiological processes which are going on inside our body helps in the processing of the life, helps us to be in a living state. So an impaired, अगर वो physiological functioning सही ढंग से नहीं होगा, so an impaired physiological functioning of the body due to certain kind of infection हो सकता है, due to environmental stress हो सकता है, due to weakness of certain kind of organ हो सकता है, so that brings about the disease. Clear? So this is your health and this is your disease. So now अगर हम लोग ऑकरेंस के ऊपर बेस्ड करके डिजीजेस को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो देयर विल बी जनरली टू टाइप्स ऑफ disease on the basis of occurrence. First of all, we will be having the congenital disease. Congenital disease को हम लोग inborn disease भी बोल सकते हैं. The child which inherits from the mother. Clear? Or both of his parents. तो जो उसको इनबॉर्न डिजीजेस मिले हुए हैं उनको हम लोग जनरली कॉन्जेनिटल डिजीज बोल सकते हैं. क्लियर? सो दे आर ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न डिजीजेस विच ऑकर फ्रॉम बर्थ. ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है? मैंने यहां पर सारे वही एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हो. मैं तो नहीं बोल सकता हूं क्योंकि एक्चुअली ये सारे डिजीजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज इन द मेंडल्स हेरिडिटी. हम लोग ये सारे डिजीज को एक एक करके पढ़ेंगे. क्लियर? सो ये सारे डिजीज आपके किसके अंदर होता है? दिस इज योर कॉन्जेनिटल डिजीज. क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल द हेमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, तो ये दोनों तो आपके ब्लड रिलेटेड है. ठीक. देन वी हैव द सिंड्रोम, द डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड द टर्नर्स सिंड्रोम. ठीक है, ये एक एक करके हमें आपको पढ़ना होगा. किसके लिए? है ना? तो दीज ऑल द डिजीज आर कॉन्जेनिटल डिजीजेस. ठीक. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमें अपने चारों तरफ से हमारे लाइफ साइकिल के अंदर, लाइफ स्टेज के अंदर कभी ना कभी हमारे चारों तरफ से एनवायरमेंटल से जो हमें डिजीजेस मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं एक्वायर्ड डिजीज. हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, उसके ऊपर बेस करके हमें जो डिजीजेस होता है इन द लॉन्ग रन,
those type of diseases are known as the acquired diseases. Clear? And these diseases are generally two types. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी द कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल आप क्लास 9 से में भी जब आपके हेल्थ एंड डिजीज करके जो चैप्टर था वहां पर भी हम लोग देखे थे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल मतलब जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को अफेक्ट कर सकता है उसको हम लोग नाम दे सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. क्लियर? और इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं जिसमें इन्फेक्शन फैलने का आपका चांस रहता है. सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है द कोविड-19. क्लियर? दैट इज अ कोरोना वायरस. तो दिस विल बी अ कम्युनिकेबल डिजीज एंड दैट्स व्हाई ये देखिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ मायने रखता है अभी. ठीक है ना? तो ये कौन कॉज करता है? तो ऑल दीज कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस. एंड व्हाट आर पैथोजेंस? दे आर द डिजीज कॉजिंग जर्म्स. ये वायरस हो सकता है, ये रिकेट्स हो सकता है, ये आपके बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकते हैं, प्रोटोजोआन्स और वर्म्स भी हो सकते हैं. क्लियर? तो ये सारे के सारे आपके कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस है. क्या क्या डिजीज ये पैथोजेंस पैदा करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे. क्लियर है? एंड द सेकेंड टाइप ऑफ एक्वायर्ड डिजीज विल बी योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी बोल सकते हैं. जैसे मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है या किसी का हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ है, कुछ ब्लॉकेज आया हुआ है कोई आर्टरी के अंदर, तो दैट विल नॉट बी caused by certain kind of pathogens and this cannot be transferred or infection आपका फैलने का चांस इसमें नहीं है. किसी को गॉइटर है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन नजर आया उसके डाइट पे तो उसको गॉइटर हो गया. क्लियर? थायराइड ग्लैंड की बीमारी. किसी को इंसुलिन सही ढंग से सीक्रेट नहीं हो रहा है तो आपका डायबिटीज हो रहा है. किसी को प्रोटीन का मैल न्यूट्रिशन हो रहा है तो उसके क्वाशियोरकॉर हो रहा है. तो दिस ऑल डिजीजेस आर नॉन इन्फेक्टेड. क्लियर? एंड दे कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन एंड हेंस दे आर टर्म्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. क्लियर है? सो कॉन्जेनिटल डिजीज, इनबॉर्न डिजीजेस and acquired diseases are can be classified into communicable as well as non-communicable diseases. Moving on to the next, like एक पैथोजन जो है उसको क्या क्या ऐसे एडेप्टेशंस होना चाहिए ताकि वो आसानी से एक डिजीज को एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल इन्फेक्शन के पास वो फैल सकता है. क्लियर? सो यहां पर आपके हो सकता है दो तरीके के ट्रांसमिशन. एक हो सकता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन. तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होगा? जैसे मान लीजिए बिल्कुल मतलब कम्युनिकेबल तो है ही है और साथ साथ डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा. जैसे अगर इन्फेक्टेड पर्सन से आप छू लो उसको या उसके जो आपके कपड़े वगैरह है उससे आपका कांटेक्ट हो जाए तो डायरेक्टली द डिजीज विल बी कमिंग ऑन टू योर बॉडी. ठीक? तो दैट इज जैसे कि आपके रिंग वर्म, फाइल आपके एक आपका वर्म टाइप है, साइफिलिस क्लियर बैक्टीरियल है, चिकन पॉक्स क्लियर, मीजल्स कॉमन कोल्ड वायरल, मम्प्स, निमोनिया, H1N1, द टीटनस, हुपिंग कॉफ, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे के सारे जो डिजीजेज है ये कैसे फैलते हैं? ये आपके डायरेक्टली ट्रांसमिटेड होते हैं. इसीलिए अगर इनमें से कोई भी आपके बीमारी होता है तो जनरली उसको बेड रेस्ट दिया जाता है या उसको दूसरे के साथ से थोड़ा सा दूर रखा जाता है. स्पेशली इन केस ऑफ आप लोग देखोगे चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स. क्लियर? ये जनरली बहुत जल्दी फैल सकता है डायरेक्टली. क्लियर? अगर मैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करूंगा तो ऑब्वियसली ये हो सकता है किसी जरिए के द्वारा. अब वो जरिया क्या हो सकता है? बेस्ट एग्जांपल विल बी वेक्टर बोर्न. जैसे मलेरिया, मलेरियल के जो आपके पैरासाइट होगा, जो पैथोजन होगा, वो पैथोजन खुद ब खुद जा नहीं सकता है तो वो जाएगा एक फीमेल एनोफिलस मॉस्क्वीटो के अंदर होते हुए. क्लियर? तो यहां पर वो फीमेल मॉस्क्वीटो एक आपके वेक्टर की जैसा काम कर रहा है ताकि वो पैथोजन को ले जा सके फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन. क्लियर? तो ठीक वैसे ही जो डेंगू है, कॉलेरा, टाइफॉइड, डायरिया, डिसेंट्री, ये सारे के सारे जो है यहां पर
जो भी डिजीज कॉजिंग आपके जर्म्स है या पैथोजेंस है, ये ट्रांसमिट कर रहा है बाय सम एजेंट्स। क्लियर? और इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं वेक्टर बोर्न। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेहिकल बोर्न, जैसे कि हो गया फूड, ठीक, जैसे वाटर हो गया, आइस हो गया, एयर हो गया, ये सारे के जरिए के साथ जो पैथोजन है वो एंटर कर रहा है हमारे बॉडी। क्लियर है? ठीक, तो जो एबायोटिक ऑब्जेक्ट्स आपके जब वेक्टर बनता है तो उसको हम लोग वेहिकल बोर्न बोलते हैं, और जनरली अगर जो बायोटिक कंपोनेंट्स है जिसके द्वारा पैथोजन एंट्री करता है तो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो वेक्टर एंड वेहिकल। क्लियर है? तो यहां पर भी देखिए कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, बिकॉज दे आर कंसर्न विथ द वाटर, इन्फेक्टेड वाटर। नेक्स्ट वी हैव द फोर्माइट। ये भी नाम आप काफी बार सुने हो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कोविड-19। क्लियर है कि कोई भी जो अब सरफेस के ऊपर ये वायरस बहुत देर तक सरवाइव कर रहा है, जनरली जो मेटल सरफेसेस है, क्लियर है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप मार्केट से कोई भी थैली वगैरह जब लाते हो तो उसको अच्छी तरह धो लो या उसको कुछ देर धूप के अंदर रख दो आप। क्लियर है? तो दैट इज दे बिकम फोमाइट। सो दीज पैथोजेंस are transmitted through the articles which are handled or coming in contact with the patients. Clear? Patients इस्तेमाल किए और वैसे ही सपोज करिए कोई इंफेक्टेड पर्सन कोई रूम के अंदर एंटर कर रहा है, वो ऑब्वियसली डोर हैंडल को पकड़ के ही दरवाजा खोलेगा, तो अब उसके शरीर के जो आपके वायरस है या जो भी पैथोजेंस है वो अब उस डोर नॉब के अंदर हो सकता है, चांसेस है कि वो वहां पे रह जाए। अब एक नॉर्मल पर्सन अगर सेम वही डोर नॉब को टच कर ले तो फ्रॉम दैट सरफेस व्हाइल ही इज टचिंग दैट पैथोजेंस इज एंटरिंग इनटू द नॉर्मल पर्सन, और वो उसको जब आंखों में, नाक में, या जब वो हाथ से अपना मान लीजिए अननोटिसिंगली एक्सीडेंटली मुंह के अंदर डाल दिए तो वही पैथोजेंस फिर उसके बॉडी में एंटर कर जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे के हम लोग बोल सकते हैं द फोमाइट बोर्न डिजीजेस। क्लियर है? सो यहां पर कोई भी जैसे डोर हैंडल हो गया, क्रॉकरी, जो यूटेंसिल्स आपके कोई भी इंफेक्टेड पर्सन इस्तेमाल किए, टैप्स, सिरिंजेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे के सारे हो जाएगा फोमाइट्स। दे विल बी एक्टिंग एज फोमाइट्स बाय विच द पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा हो जाएगा द अनक्लीन हैंड्स। इसलिए बोला जाता है कि बार बार हाथ धोने के लिए बिफोर एनी टेकिंग मील्स। क्लियर? आप कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे बाद एक बार अपना हाथ धोना चाहिए, बिकॉज क्लियर, ठीक है, क्योंकि वही फोमाइट का डर रहता है। सो अनक्लीन हैंड्स में कैरी डिजीज जर्म्स टू फूड एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। क्लियर है? जैसे कि एस्केरियोसिस हो गया, एंटेरोबायोसिस हो गया, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजेंस करवाता है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या क्या होंगे ना? पैथोजेंस अगर मैं एज सेल्यूलर बात करूं तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही रह जाता है, दैट इज द वायरस। क्लियर? सो वायरल डिजीजेस हो सकते हैं, कॉजेज कॉजिंग बाय द वायरस। क्लियर? जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा एड्स, द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। If I talk about the living or the cellular which acts as a pathogen, then there will be the bacteria, so bacterial disease. It can be the protozoal, जैसे कि मलेरिया, ठीक, it can be the fungal disease जैसे कि एथलीट्स फ्लू, ठीक, it can be the parasites जैसे कि आपके हेलमिंथिस, ठीक, या हेलमिंथिक डिजीजेस बोल सकते हैं हम लोग, आगे जाके देखेंगे। तो पैथोजन को क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसका आकार इतना छोटा होना चाहिए कि वो आसानी से उस होस्ट के अंदर एंटर कर सके। क्लियर? बिकॉज दे आर जनरली एज पैरासाइट्स, तो दे कैन हैव या दे शुड हैव द एबिलिटी टू एंटर इनटू द होस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, दे कैन विथस्टैंड द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट। जैसे ही होस्ट बॉडी के अंदर आया, अब होस्ट का बॉडी, उसको तो फॉरेन पार्टिकल मिला है कुछ, तो ऑब्वियसली वो उसको रेजिस्ट करना चाहेगा। क्लियर? और रेजिस्ट करने के लिए उसका डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा। तो अगर पैथोजन सक्सेसफुली उस डिफेंस मैकेनिज्म को विथस्टैंड कर ले तो दैट मीन्स ही इज नाउ इट इज नाउ एंटरिंग इनटू द होस्ट, और वो फिर अपना धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके और डिजीज पैदा करेगा होस्ट के अंदर। क्लियर? दे कैन एबिलिटी, अगर वो एंटर कर ले
अच्छी तरह और डिफेंस मैकेनिज्म को विस्टैंड कर ले, तो देन इट विल बी इजीली ग्रोइंग इनसाइड एंड मल्टीप्लाइंग इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ठीक, और ये धीरे से आपका जब एक इन्फेक्टेड बॉडी से दूसरे नॉर्मल बॉडी के अंदर पैसेज हो रहा है, तब वो आसानी से वो सरवाइव होके रह जाए। क्लियर? सो दीज आर द कैटेगरी या दीज आर द क्रेडिबिलिटी जो पैथोजन के अंदर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट 4 कॉमन डिजीजेस जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है। क्लियर? स्टार्टिंग विथ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग अबाउट टाइफॉइड। क्लियर? सो टाइफॉइड एक्चुअली है क्या, कौन पैदा करता है ना? इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस ऑफ इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन है ये? इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, जो कि एक बैक्टीरिया पैदा करता है और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। क्लियर? तो सैल्मोनेला टाइफी इज द बैक्टीरियम which causes serious infection of the intestine and causing the disease that is called typhoid. Clear? तो ये आपका कैसे स्प्रेड होता है ना? दिस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू द इनटेक ऑफ contaminated water and food. अगर कोई भी गंदा पानी या खाना बिना ढका हुआ अगर कोई खाता है, अगर कोई इनटेक करता है, तो देयर विल बी अ ह्यूज चांसेस कि वहां से आपके ये सैल्मोनेला टाइफी इंटेस्टाइन के अंदर जाके और टाइफॉइड डिजीज पैदा कर दे। क्लियर? नेक्स्ट, ये एक्चुअली होते किसमें है ना? जो जनरली ओल्डर वुमेन है उसके अंदर ये जनरली आपके कैरियर हो जाते हैं। सबसे पहले टाइफॉइड नोटिस किसमें किया गया था ना? शी वॉज अ कुक एंड हर नेम वॉज टाइफॉइड मैरी। क्लियर? दैट वॉज द फर्स्ट आपका लेडी who was first reported to have undergone this disease of typhoid. अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ना? सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले तो हो जाएगा कि बुखार, बहुत तेज बुखार रहेगा अराउंड 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड और लगातार रहेगा। बुखार के साथ साथ थोड़ा सा हेडेक, जॉइंट में पेन, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी हो जाएगा, जो धीरे धीरे फॉलोड होगा बाय डायरिया, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर मतलब लीवर फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा बहुत तेजी से, एंड द स्प्लीन विल ऑल्सो गेटिंग एनलार्ज्ड। क्लियर? तो ये तो सबसे पहले आपके सिम्टम्स है। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है तो ये जो सैल्मोनेला टाइफी है, अगर ये धीरे से जाके इंटेस्टाइन के अंदर हैमरेज पैदा कर दे या पोर लाइक परफोरेशन कर दे, तो अल्टीमेटली द डेथ ऑफ द पेशेंट कैन ऑल्सो ऑकर। क्लियर है? आप यहां पर देखिए द फीकल ओरल रूट, यहां पे आपके बिना अच्छी तरह हैंड वॉश करते हुए अगर हम लोग कुछ खाना खाते हैं या जो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर अगर हम लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो वहां से डायरेक्टली एसिड टॉलरेंट जीन्स जो होगा वो आपके ये सेफ पैसेज करवा देगा थ्रू द स्टोमक एंड टू द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा उसमें जाके ये इन्फेट कर देगा और धीरे धीरे आपके ये स्प्रेड हो जाएगा टू द लीवर, टू द स्प्लीन, टू द बोन मैरो, और आपके पूरे इन्फ्लेमेशन कर जाएगा एंड विच विल बी रिजल्ट इन डायरिया, जिससे आपके कॉन्स्टेंटली आपके स्टूल्स वगैरह लूज मोशंस होता रहेगा। ठीक? सो आपके कंफर्मेशन टेस्ट कैसे पता चलेगा ना? द वाइडल टेस्ट, ये एक सेरोलॉजिकल कॉन्फर्मेशन टेस्ट है जहां पे एक सेरम लिया जाता है और एंटीबॉडीज का प्रेजेंस को ढूंढा जाता है इन द पेशेंट्स ब्लड। क्लियर? अगर एंटीबॉडीज आपके उस पैथोजन के एंटीजन से मैचिंग हो जाता है, अगर वो डिटेक्ट होता है आपके पेशेंट ब्लड के अंदर, दैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑन द सेकेंड डिजीज, दैट इज निमोनिया। क्लियर? न्यूमोनिया जो है वो भी एक बहुत ही आम बीमारी आज देखा जाता है जनरली इन द स्मॉलर चिल्ड्रन या किड्स। ये होता है, ये भी एक एक्यूट इंफेक्शन ऑफ द लंग्स होता है, जैसे वो इंटेस्टाइनल होते थे, ये होगा आपका एक्यूट इंफेक्शन ऑफ द लंग्स, जो कि आपके अगेन सेम बैक्टीरियल होगा, स्क्रिप्टोकोकस न्यूमोनिये या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी।
क्लियर है? ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह नाम याद रखना पड़ेगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये और या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, जिसको फ्लू भी बोला जाता है, फ्लू बैक्टीरिया। क्लियर है? तो ये आपके निमोनिया पैदा करता है सबसे ज्यादा। और ये जो पैथोजेंस है, ये कैसे करके ट्रांसमिट होता है ना? थ्रू द ड्रॉपलेट्स और द एरोसॉल्स विच इज रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसीलिए सबसे बोलते हैं, जब छींकते हैं तो हम लोग कोई कपड़ा या कोई कुछ नाक के ऊपर आपका रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को निमोनिया होता है और वो आपके सामने बैठ के छींक रहा है, तो उस छींक से जो उसके आपके निकल रहा है, द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स, दैट कैन कंटेन द पैथोजन कॉजिंग निमोनिया एंड यू कैन गेट इन्फेक्टेड। क्लियर है? सिम्टम्स क्या होगा इसका ना? सबसे पहला जो सिम्टम होगा, एल्वियोलाई जो है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्लियर? और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा। तो अगर उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही ढंग से नहीं होगा तो जितना मात्रा में ऑक्सीजन आपके सेल्स को दरकार था उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, देयरफॉर देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी। क्लियर? सो एक परसिस्टेंट ड्राई कफ आपको नजर आएगा आपके गले में। किसी किसी केस में हाई फीवर हो सकता है। क्लियर? क्योंकि आपको सांस नहीं ले पा रहा है तो ऑब्वियसली एक इंक्रीज्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा, जिसके वजह से इतना खांसी के वजह से चेस्ट के अंदर पेन भी हो सकता है या पेन इन द थोरेसिक कैविटी भी हो सकता है। क्लियर? बट सबसे मेन आपका इसका है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एल्वियोलाई। क्लियर है? अच्छा, ज्यादातर सीरियस केसेस के अंदर ये इतना ज्यादा अगर आपका एल्वियोलाई में फ्लूइड अगर जम जाएगा, देयर कैन बी सायानोसिस। और ये क्या हो जाएगा ना? ब्लड जब डिस्कलरेशन होते हुए रेड कलर से लेके ब्लूइश कलर की टेंडेंसी में जब होता रहेगा, तब दैट विल बी टर्म्ड एज सायानोसिस। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या हम लोग बोलेंगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि डिफ्यूजन बिल्कुल भी अच्छी तरह हो नहीं रहा है। तो सेल्स को अगर सही ढंग से नहीं मिलेगा, ब्लड के हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कंटेंट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो धीरे 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 आपका ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द ब्लड कलरेशन विल बी टर्न इनटू ब्लू। क्लियर? ठीक है? तो देखिए वही सेम चीज, ये आपके नॉर्मल एयर सैक्स है, और यही अगर एयर सैक्स अगर निमोनिया फ्लूइड से भर जाता है तो आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा एंड इट विल बी निमोनिया। क्लियर है? ठीक? डायग्नोसिस कैसा होगा ना? इट कैन बी इजीली कंफर्म्ड बाय अ चेस्ट एक्सरे। सॉरी, दिस इज योर मिस टाइपोग्राफिकल एरर, इट विल बी रे। एक चेस्ट एक्सरे से पता चलेगा। और अगर कल्चर ऑफ द स्पटम, स्पटम मतलब अ मिक्सचर ऑफ द सलाइवा एंड द म्यूकस। क्लियर है? जो जो थूक होता है उस थूक का आपका टेस्ट होता है, सलाइवा टेस्ट होता है। तो स्पुटम का मतलब है मिक्सचर ऑफ सलाइवा विथ द म्यूकस। तो इसी से आसानी से आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि निमोनिया पेशेंट को है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू, वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर वेरी वेरी कॉमन, मतलब सबको ये तो हो ही रहा है एक बार ना एक बार अपने लाइफ आपके स्पैन में, दैट इज कॉमन कोल्ड। क्लियर? ये जो कॉमन कोल्ड है, एक्चुअली इट इज अ वेरी हाईली कंटेजियस इंफेक्शन। बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये फैल सकता है। क्लियर? और इसको इट इज अ वायरल डिजीज। जो वायरस इसको फैलाता है उसको हम लोग नाम देते हैं राइनो वायरस। एंड यू विल बी स्ट्रेंजली टू ऑब्जर्व दैट दिस राइनो वायरस कम्स इन द क्लास ऑफ द कोरोना वायरस, जो आज हम लोग जूझते हैं। तो इवन दिस इज योर राइनो वायरस। और अगर इसका स्ट्रक्चर के साथ आप टीवी में जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर दिखा रहा है उसके साथ अगर आप कंपेयर करो तो मोर और लेस सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। क्लियर है? सो राइनो वायरस के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ये आपको यहां से पता चल रहा है। और जो ये आपका सिंगल स्ट्रैंड है, इसके अंदर बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट। क्लियर है? विच इज योर द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर? तो ये आपका क्लास हो जाएगा राइनो वायरस का। दिस वायरस कहां पर अफेक्ट करता है? दे अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल लाइनिंग, of the throat and of the
आपका लैरिंग्स हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड? निमोनिया विल बी जनरली इन्फेक्टिंग द लंग्स, क्लियर, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ द नोज, द नेजल लाइनिंग, द थ्रोट, द लैरिंग्स, इनको अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा कॉमन कोल्ड। क्लियर? इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं ना? सबसे पहला सिम्टम हो जाएगा सोर थ्रोट, गले में खराश, रनिंग नोज, बहता हुआ नाक, स्नीजिंग, हेडेक, स्टफीनेस ऑफ द हेड, कफ, लैक ऑफ एपेटाइट एंड एक नोजिया टाइप फीलिंग, एक सिकनेस टाइप ऑफ फीलिंग हमेशा आपका रह जाएगा। क्लियर है? तो भाई देखिए, ये पूरा का पूरा जो अपर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसी को ही सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर? ये सिम्टम्स जो है, ये जनरली हम लोग बोलते हैं कि मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन कहीं ना कहीं एडिक्शन बना देता है आपको उसके प्रति। ठीक? जनरली देखा गया है कि कॉमन कोल्ड का जो ये राइनो वायरस है, ये सबसे ज्यादा अपना इफेक्टिव होता है फ्रॉम द सेकेंड टू थर्ड डे ऑफ द इंफेक्शन। 3 से 7 दिन जनरली आपके इसके एक्सप्रेशन या सिम्टम्स नजर आते हैं, और जनरली 7 दिन के बाद आपका जो पेशेंट है वो ठीक होता रहता है। क्लियर है? अगर 7 दिन के बाद भी अगर ये सारे सिम्टम्स आपके हो रहा है, मतलब अब वो कॉमन कोल्ड से कुछ और की तरफ इशारा कर रहा है, तो इन दैट केस यू कैन इजीली कंसल्ट योर मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर। क्लियर? द लास्ट ऑफ टुडे जो हम लोग बात करेंगे, दैट इज अबाउट द एमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री हम जानते हैं कि डिसेंट्री आपका जहां पे लूज मोशंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कॉलरा वगैरह में नजर आता है हमें। ठीक? तो यहां पे एमीबिक डिसेंट्री मतलब ऑब्वियसली इट विल बी कॉज्ड बाय एमीबा, एंड एमीबा इज अ प्रोटोजोआ। सो एमीबियासिस, इस एमीबिक डिसेंट्री को हम लोग एमीबियासिस भी नाम देते हैं, और ये एक प्रोटोजोआन डिजीज होते हैं जो कॉज कौन करता है? एंटोमोएबा हिस्टोलिटिका। याद रखिएगा। क्लियर? इट इज मेनली थ्रू द इंटेक ऑफ द contaminated फूड विथ द फीकल मैटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जिसके अंदर फीकल मैटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन आपका कॉन्टैमिनेट होकर रखा हुआ है, अगर उसको हम लोग इंटेक कर लेता है कोई नॉर्मल पेशेंट, तो उसको जनरली चांस होगा कि ये एंटोमोएबा हिस्टोलिटिका उसके शरीर में जाके और ये डिजीज पैदा करे। यहां पर एक बात करना चाहता हूं कि एमीबिक डिसेंट्री और बैक्टीरियल डिसेंट्री दो अलग अलग चीज है। हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे कॉमन नजर आता है, दैट इज एक्चुअली बैक्टीरियल डिसेंट्री। और बैक्टीरियल डिसेंट्री ऑब्वियसली इट विल बी कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज शिगेला। क्लियर? ठीक? तो यहां पर एक आपका चार्ट मैंने दिया है, द डिफरेंसेस बिटवीन द एमीबिक डिसेंट्री एंड द बैसिलरी डिसेंट्री, which is also known as the bacterial dysentery. Clear? So we will be quickly going through this in time. चलिए देख लेते हैं एक बार ना, एमीबिक डिसेंट्री कौन कॉज कर रहा है? जैसे मैंने अभी बात किया, इट इज कॉज्ड बाय एन इन्वेसिव प्रोटोजोआन पैरासाइट, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंटोमोएबा हिस्टोलिटिका। Whereas जो बैसिलरी डिसेंट्री है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कॉज करता है, जिसका नाम है शिगेला। क्लियर? यहां पर एमीबिक डिसेंट्री के अंदर जो पेशेंट्स होंगे सफरिंग कर रहे हैं, उसको कम से कम नहीं तो एक दिन में 6 से 8 बार लूज मोशंस जाना पड़ेगा। बट बैसिलरी डिसेंट्री अगर आपके इस रेट से ज्यादा है, दैट इज अराउंड 10 और मोर देन 10 अगर आपके बाहर जा रहा है, तो जनरली दैट इज द बैक्टीरियल डिसेंट्री। क्लियर? यहां पे बहुत ही कॉपियस अमाउंट ऑफ स्टूल नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत आपका स्टूल नजर आएगा, वेरएज यहां पे बहुत ही कम मात्रा में आपका स्टूल या फीकल मैटर निकलेगा। क्लियर है? यहां पर एक डार्क कलरेशन होगा, द स्टूल जो निकलेगा इट विल हैव अ डार्क कलरेशन एंड इट विल बी हैविंग एन ऑफेंसिव ओडर। बहुत ही बदबूदार ये आपका स्टूल रिलीज होगा। क्लियर? एंड वेरी डार्क कलर के स्टूल या फीकल मैटर होंगे। Whereas यहां पर जो कलरेशन होगा वो जनरली फ्लैश येलो कलर्ड होगा, एंड इट विल बी ओडरलेस स्टूल, कोई भी आपका बदबू नहीं होगा। इट इज अ जनरल इन्फेक्शन। क्लियर? यहां पर डार्क कलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर काफी सारे आरबीसीज, डेड वोर्न आरबीसीज क्लम्प्ड टुगेदर विथ न्यूमरस eosinophils. eosinophils क्या है? इट इज अ पार्ट टाइप ऑफ अ WBC. Few pus cells and macrophages are getting released by the
स्टूल। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ आरबीसी जो एक राउलियक्स, फ्यूअर ईओसिनोफिल्स, ठीक है, और न्यूमरस पस सेल्स एंड मैक्रोफेजेस निकल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पर बहुत ही ज्यादा ईओसिनोफिल का मात्रा होगा, यहां पर ईओसिनोफिल का मात्रा कम होगा। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में आरबीसी इकट्ठा होकर रहेगा, यहाँ पे अलग अलग आपके आरबीसीज रहेगा, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ आरबीसीज रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका द बैक्टीरियल डिसेंट्री एंड दिस विल बी योर एमीबिक डिसेंट्री। क्लियर? बैक्टीरियल डिसेंट्री कौन कॉज करेगा? नाम याद रखिएगा, शिगेला। एंड एमीबिक डिसेंट्री करेगा एंटरमोइबा हिस्टोलिटिका। क्लियर? सिम्टम्स क्या है ना? सिम्टम्स हो जाएगा जैसे डायरिया जो है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टूल्स, जो ब्लड एंड म्यूकस से आपका रहेगा। तो दिस इज योर डायरिया होगा। एंड इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन, एक हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता ही रहेगा आपके पेट के अंदर, जैसे सही ढंग से आप साफ नहीं हो पाओगे, विथ एडिशनल एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल में आपके पेन्स रहेंगे, क्रैम्प्स रहेगा। और इन केस ऑफ लिवर इन्फेक्शन देयर कुड बी एब्सेस ऑफ लीवर, मतलब इसी के लिए ही आपके ये जो आरबीसी वगैरह है वहां से डेड आरबीसी आपके धीरे धीरे निकलता जाएगा। क्लियर? अगेन इसके अंदर फीवर भी हो सकता है, आपके बहुत ही पसीना छूट सकते हैं, स्वेट्स हो सकते हैं, एंड जनरली इतना अगर अमाउंट ऑफ बॉडी वाटर लॉस अगर होगा तो इट विल रिजल्ट इन द वेट लॉस। क्लियर? तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगा, हेंस देयर शुड बी अ कांस्टेंट रेट ऑफ इनटेक ऑफ फ्लूइड्स। और इसीलिए तब आदमी को सलाइन वाटर के ऊपर रखा जाता है या जनरल ओआरएस पिलाया जाता है, that is the oral rehydrating solution. Clear? So today we have discussed about the pneumonia, common cold, amoebic dysentery and typhoid. जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, we will be starting with the major disease, that is the malaria. And here we have to also study about the life cycle of the malarial parasite, that is Plasmodium. Then we will be moving on to three others, that is Ascariasis, Filariasis, and the ringworms or the fungal disease. So 4 we have done today, 4 we will be doing it in our next class. Till then, thank you. I am not giving you notes. You have to just pause the video and write down each and every important point which is not mentioned in your NCRT, and you have to prepare accordingly. Thank you very much.